So let's start with the impact of temperature on the PN junction. Right. So in the last class, we have discussed the impact of temperature on the forward bias case for the PN diode. Now we are studying what is the impact for the reverse bias. So here in the slide, it's saying that the reverse saturation current IS will be doubled for an incremental increase in temperature per 10 degrees centigrade. What it means, if I am having IS is equal to, let's say, X microampere at temperature, let's suppose 10 degrees centigrade. Okay. Now, if I increase the temperature from 10 to 20 degrees centigrade, my IS will be 2 times of X microampere. ये मतलब है इसका कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज के ऊपर आपका जो रिवर्स करंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. Right. So for example, it's written here that if my reverse current is of the order of 10 nanoampere at temperature 20 degree centigrade. Suppose ये आपको क्वेश्चन आता है and कहते हैं कि IS is 20 at 20 degree centigrade is 10 nanoampere. Compute the value of IS at 100 degree centigrade. तो आप क्या करोगे? तो आप पहले कहोगे initial 20 degree है. So we know that for every 10 degree rise in temperature, the previous current gets doubled. तो 20 डिग्री जब हुआ, 20 पे आपका था 10 nanoampere, right? Now when you go from 20 to 30, तो 10 डिग्री राइज चेंज हो गया. So 30 में जाने के बाद आपका करंट कितना हो जाएगा? It will become 20 nanoampere. Now if I further increase from 30 to 40, जब आप 40 पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा? अब 20 का डबल हो गया. It will become 40 nanoampere. Now if I again move from 40 to 50 degree centigrade, again 10 degree rise, तो previous जो 40 था उसका 80 बन जाएगा. Likewise, if you continue 160 nanoampere, then 320 nanoampere, then 640 nanoampere, then 1.28 microampere. And once you reach 100 degree centigrade, then its value is 2.56 microampere. So it means my IS reverse current, which was initially as 10 nanoampere, okay, at 20 degree centigrade, its value increases to 2.56 microampere at 100 degree centigrade. Right? So इसका मतलब क्या होगा कि if I am using my diode at different temperature ratings, then my value of IS changes. And you all know what is the impact of IS on the ID. By the Shockley equation, if you write ID is equal to IS e raised to power VD upon NVT minus 1. So if you increase the temperature, then what we are finding that this IS factor keeps on doubling for every 10 degrees. Right? So इसका मतलब क्या हुआ कि if we are operating at a very higher temperature side, then the effect of this IS is also a dominant. Right? As you can see here, if you go from 100 degree to 200 degree centigrade, what is the value we're getting? We're getting 2.62 milliampere. That is quite comparable to the other IDs. Huh? इसका मतलब क्या होगा कि it depends upon that कि what is the value of temperature at which we are operating. Right? So this slide shows that कि in a nutshell, whenever I am increasing the temperature, the effect of temperature is becoming dominating from the IS side if we increase the temperature continuously, and its value gets doubled for every 10 degree rise in temperature. This is true for all the semiconductors which are using, maybe silicon, germanium, or any other. Right? So reverse current getting doubled after every 10 degree rise in temperature. Is this concept clear? Any doubt in this? No, sir. चलें आगे? No, sir. Okay. Now we'll talk about the ideal diode and practical diode. अभी हमने ये वर्ड कई जगह यूज किया है, ideal diode क्या होता है, practical diode क्या होता है ना. तो अब हम बात करेंगे कि ideal diode के characteristics कैसे होते हैं और practical कैसे होते हैं. So when I am saying the word ideal diode means mind में आपको ऐसे जाना चाहिए कि क्या कि there is VD is equal to 0 volts and there is no resistance offered by this diode. अगर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा इसका मतलब क्या, देयर इज नो ड्रॉप, है ना. तो आप जो भी वोल्टेज दोगे ऑटोमेटिकली यू गेटिंग आउटपुट स्टेट सेम आउटपुट. सो हियर
in this graph where we are writing ID in milliamperes in the positive y-axis and VD in volts in the positive x-axis. So we are saying the current starts at 0. जबकि अगर आपको याद हो जब हमने वो किया था पहले कैरेक्टरिस्टिक्स वाला तो उसमें हमने 0 पे स्टार्ट किया था. हमने कहां स्टार्ट किया था? एट नी वोल्टेज. जैसे यहाँ पर देखो बराबर स्टार्ट है ना. तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं आइडियल डायोड में क्या है कि देयर इज नो VD रिक्वायर्ड. तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता, पर आइडियली हम कह रहे हैं आइडियल डायोड होना चाहिए एंड इट एक्ट्स एज अ क्लोज्ड स्विच. क्लोज्ड स्विच का मतलब क्या है कि जो P है और जो N है उनके बीच में देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पर मान लो वोल्टेज V1 है, सपोज करो यहाँ वोल्टेज V2 है. If I am saying the diode is short circuit, it means V1 is equal to V2 or V1 minus V2 is equal to 0. So whenever the voltage difference across the two sides of the PN diode is 0, it means they are said to be short circuited. Got this point? Short circuit. Now short circuit means closed switch. That is VD is equal to 0, voltage across the diode. Now if we apply the reverse bias, we are saying that there is no current flowing across the reverse bias में हमारा कोई भी current flow नहीं कर रहा and it acts as a purely open circuit. तो यहाँ से current यहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है ना. तो आपका ID को क्या हो गया? वो 0. So now if I talk about what is the amount of forward resistance, जो हम कह रहे हैं 0 है या वो है, तो how to compute for the ideal diode? So resistance कैसे निकालते हैं as per the Ohm's law? So resistance is voltage divided with current. तो हमने कहा forward resistance is VD upon ID. And for the ideal diode, we are saying VD is 0 volts. So if VD is 0 volts, whatever ID I am getting, it's okay. But output जो आपकी forward resistance है, that कितनी आएगी? 0. So the forward resistance for the ideal PN junction diode is 0 ohms. It is not offering any resistance. And if I try to compute the reverse resistance, that is again VD upon ID. So VD, we are applying some reverse voltage, some negative voltage, -1, -2, -5, -10, whatever you want. But under reverse bias, we are saying the current ID is 0. So if ID is 0, it means that denominator is 0. So we are getting infinite ohms. So if somebody asks you that what is the amount of forward and reverse resistance offered by ideal PN diode, then you can straightaway say that the amount of forward resistance is 0 ohms and the amount of reverse resistance is infinite for the case of ideal diode. It means for forward bias it acts as a closed switch and under reverse bias it's acting as an open switch. Right now, if I move towards the practical diode, जो आप लैब में यूज करते हो या जो ड्रिल में यूज करते हैं, है ना, practical diode में क्या होता है आपके पास कि when we start from 0, the conduction is not going to start. It starts once we obtain the voltage VK. VK is my knee voltage, है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि at VK my conduction starts and it increases. So here we have taken the example of, let's say, silicon. So for the forward bias, if I want to work under forward bias, so for that case we can think that if there is a drop of 0.7 volts or we are applying the voltage more than 0.7 volts, then the conversion starts. Or at 0.7 volts starts, right? So here, if 0.7 volt is the amount of voltage which is required to make the current flowing from P side to N side. So it means what is going to be the forward resistance? So if I compute the forward resistance, it is nothing but the 0.7 volts divided with the current ID, right? Similarly, if I talk about the reverse bias, under reverse bias, we are saying that it acts as an open switch. ID is equal to 0. So again, here, if I compute ID, we know that under practical, when we say the ID is very small, of the order of IS, that is in microamperes or picoamperes or nanoamperes, हमने देखा है ना. तो जो आपकी बहुत small value की value आएगी इसमें है. तो जब यहाँ पर हम put करेंगे reverse bias, तो to compute the reverse resistance, this value is coming out of the order of mega ohms. VD मान लो आपका एग्जांपल ले लेते हैं, आपने मान लो रिवर्स वोल्टेज लगाई -1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट डिवाइडेड विद आईडी आपका सपोज करो 1 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है. तो कितना आ गया हमारे पास स्टेट में 1 मेगा. तो आपकी ये क्या होगी, रिवर्स रेजिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मेगा. एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इफ आई कंप्यूट अगेन इट डिपेंड्स ऑन आईडी कितना लिया आपने, तो 0.7 वोल्ट्स डिवाइडेड विद आईडी जो भी है, मान लो 1 मिली एम्पियर है तो 1 मिली एम्पियर डाल दिया यहाँ पर, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1000 ऊपर जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 700
Right. So here, what we can conclude from this slide is that if I talk about the ideal diode, for ideal diode, my upper limit and lower limit are defined. Lower limit means the forward resistance that is at the lowest value 0, and the reverse resistance is infinite. But if I talk about the practical diode, it is of the order of few ohms for the case of forward resistance, and reverse resistance is of the order of few megaohms. And if you can recall, जो हमने पहले पढ़ा था कि that when we apply a forward bias voltage, we are saying that the majority carriers gets drifted towards the other side of a junction. यहाँ से होल आ रहे हैं पॉजिटिव साइड से, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने बायस लगाया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट फ्रीली हो पा रही है, इजीली हो पा रही है, इसका मतलब क्या हम कहते थे कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत नैरो हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस offered by the depletion region is going to be reduced for the case of forward bias. तो वो यहाँ पर दिख भी रहा है आपको। बट रिवर्स बायस में अगर बात करता हूँ तो रिवर्स रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि अंडर रिवर्स बायस द डिप्लीशन बिट्स गेट्स वाइडेंड अप, वो आपको दिख रही है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगाओम्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रिवर्स रेजिस्टेंस है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगाओम्स में आ रही है, और जो आपकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है फॉर द केस ऑफ प्रैक्टिकल डायोड इट इज कमिंग इन द ऑर्डर ऑफ few ohms. This was the conclude for this slide. Any doubt from this slide, please ask. No. Right. See, from my side, what I'm doing is that I'm trying to be as slow as possible, asking for every slide any doubts. So please don't hesitate to ask any doubt. हाँ जी. सर इसका सर VI वाला प्रैक्टिकल डायोड का वो समझा दो एक बार दोबारा। देखो VI वाले में क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि जब 0 वोल्ट पे हमने स्टार्ट किया तो जैसे वोल्ट दिया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, so the moment we reach the knee voltage, then the connection starts. तो it means इस डायोड को, प्रैक्टिकल डायोड को जब मुझे फॉरवर्ड बायस करवाना है, राइट, ऑपरेट करवाना है, तो मेरे को मिनिमम जो वोल्टेज यहाँ लगानी पड़ेगी वो कितनी लगानी पड़ेगी? एटलीस्ट 0.7 और ग्रेटर देन 0.7 वोल्टेज V1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 है ना। तो अगर 0.7 वोल्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर 0 है तो ये मेरा डायोड कनेक्शन में आ गया। तो अगर 0.7 इज मिनिमम रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब क्या है, हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकाला कि डायोड के अंदर फॉरवर्ड करंट फ्लो करवाने के लिए जो रेजिस्टेंस है तो वो कितनी आ रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द VD अपॉन ID। VD हमने कितना है, दैट इज इक्वल टू नी वोल्टेज, दैट इज 0.7 वोल्ट्स डिवाइडेड विद ID, व्हाटएवर आई एम गेटिंग इन मिली एम्पियर्स। जो पुट करोगे तो वो आपकी कुछ ओम्स में आएगी। ये तो मैंने बहुत ज्यादा लिया है इसलिए आ रहा है 700 मिली ओम्स, अदरवाइज इट्स समवेयर अराउंड 100, 200, 300 के आसपास, इट्स लो वैल्यू, राइट। तो और अगर आप बात करें तो रिवर्स रेजिस्टेंस की, तो रिवर्स में हमने क्या पढ़ा था कि जब आप रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हो तो करंट जो आपका IS आ रहा है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ पिको एम्पियर्स और नैनो एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर्स, तो वो फ्लो करता है, दैट इज वेरी स्मॉल। सो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग द रिवर्स रेजिस्टेंस, इट इज कमिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ohms और इवन मोर देन दैट आल्सो। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया कि प्रैक्टिकल डायोड के अंदर वी आर गेटिंग वेरी हाई रिवर्स रेजिस्टेंस एंड लो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। वो होनी भी चाहिए। अगर फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, उसका ड्रॉप भी कम होगा वहां पर, है ना। क्लियर है कंसेप्ट? एनी डाउट इन दिस स्लाइड? हां बोलो। यस सर। सर फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू लिखी है आपने कितनी लिखी है, फिर बताना। यहाँ पर ये समझ नहीं आया। ये मैंने क्या किया, मैंने लिया कि लेट्स से एग्जांपल आपका ID मैंने ले लिया 1 मिली एम्पियर, ठीक है, एग्जांपल ये देखा मैंने, और VD आपका 0.7 है अगर सिलिकॉन डायोड है, तो 0.7 में 1 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा? 1 मिली एम्पियर ऊपर चला गया, 10,000 हो गया, तो 0.7 to 1,700 आ गया। ओके सर, ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। सर आइडल के लिए VD 0 क्यों आ रहा है? आइडल फॉरवर्ड बायस के लिए सी आइडियल में क्या कहते हैं हम, आइडियल में ये कह रहे हैं कि देखो इसके अंदर कि 0 बिना कुछ वोल्टेज लगाए मींस हल्का सा स्लाइड पॉजिटिव भी हुआ आपका, तो करंट ऑलमोस्ट टचिंग द y एक्सिस और इट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस ओनली। तो अगर y एक्सिस के ऊपर लाई करे इसका मतलब क्या हुआ कि VD 0 के, अच्छा ठीक है वो, ठीक है ना। अगर एनीथिंग लाइंग ऑन द y एक्सिस इट मींस एक्सिस इज 0, तो VD है ही नहीं, बिना VD लगाए आपको करंट मिल रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर। राइट, एनी अदर डाउट? सर इस पीपीटी का लिंक क्या आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं? मैंने आपको एक मेल करवाई थी YOGR, आपको मिली वो मेल?
नो सर। कौन से ग्रुप के हो आप बच्चे? सर MT2। हाँ, MT2। MT2। कौन है MT2? कृष वर्मा। कृष वर्मा इज देयर? कृष वर्मा आई थिंक है नहीं। MT2 का और कौन सा बच्चा है यहाँ पर? MT2 हाँ जी MT2 का मैं हूँ सर। बच्चे, आपको मिली थी मेरे को? हाँ जी। आपको मेल मिल गई थी कौन सी सर? रिगार्डिंग द लिंक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स? रुको मैं शेयर ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, एक मिनट। सर अपना ये कोड UHU है ना? नहीं नहीं इट इज UEC 001। चेक करो चैट बॉक्स। मिला? हाँ जी सर। हाँ, अब इस जो आपको लिंक दिया मैंने, ये आपने एक्सेस करना है बाय योर थापर ईमेल आईडी ओनली, बाकी उससे नहीं करना, ठीक है? जब इसे क्लिक करोगे तो आपको इसमें पूरी डिटेल मिलेगी इलेक्ट्रिकल का 1 2 3, सॉरी जो CS 1 2 2 और MT 1 2 2, इनके लेक्चर्स का लिंक होगा पूरा, ठीक है? आप उसे क्लिक करो तो यू कैन सी द वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग प्लस द लेक्चर स्लाइड्स, बोथ आर देयर, ठीक है? और ये लिंक को कॉपी करके सेव कर लो। इसी लिंक पे आपको सारे के सारे लेक्चर और सारी PPT मिलेंगी आगे इन फ्यूचर ऑल्सो फॉर माय लेक्चर्स। चैट में डाला आपने? हाँ जी, मेरे को दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? एक मिनट रुको। ओके, ये खाली एक बच्चे को चला गया अब देखो, अब दिख रहा है? जी सर। तो इस लिंक को कॉपी कर लो अपने, सारे के सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग प्लस सारी PPT थ्रू आउट योर सेमेस्टर आपको इसमें मिल जाएगी फॉर योर ग्रुप जो मैंने ली है। इसके अलावा ई कंटेंट पड़ा हुआ साइट के ऊपर अलग से, उसका लिंक है आपके पास? नो सर। उसका लिंक भी मैं इसमें शेयर करता हूँ, वो भी मैंने वैसे मेल के थ्रू करवाया था आपको, बट इन केस नहीं आया तो आपको ये दूसरा लिंक भी भेज दिया मैंने। ये आपका कोर्स की वेबसाइट का लिंक है। सर ये कह रहा है यू नीड एक्सेस। बताता रहा हूँ, वो एक्सेस तब चाहिए अगर आप थापा ईमेल आईडी से नहीं कर रहे तब। अच्छा एक्सेस हुआ है थापा ईमेल आईडी, ठीक है? फिर नहीं एक्सेस चाहिए आपको। गॉट इट? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। Now in your diode we're going to study the 3 different types of resistances. अभी तो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस होती है ना, अब रेजिस्टेंस भी हमारे पास 3 तरह की होती है। कौन सी होती है? लेट मी राइट। रेजिस्टेंस ऑफ PN डायोड, one is DC resistance, one is AC resistance, one is average resistance. तो जब DC resistance की बात करते हैं ना, तो DC resistance का मतलब क्या है? That is what is the resistance offered by a diode at a particular point on the graph. So for example, here in this curve we have taken one point and referred to as Q point. इस Q point का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं quiescent point, or we call it as operating point. इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक मींस आपने जब डायोड यूज किया पहले, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका डायोड को लेके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करना कि वोल्टेज वेरी करने पे आईडी कितना आ रहा है ना,
IDVD नोट कर लिया। तो अब जब प्लॉट बन गया तो उस प्लॉट में आपने एक पॉइंट फिक्स करना होगा जिसके ऊपर आप वोल्टेज दोगे, अकॉर्डिंग आपको करंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो हमने एक क्यू पॉइंट फिक्स किया एंड उस क्यू पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग हमने नीचे एक्सिस बनाया VD और यहाँ पॉइंट बनाया ID कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम पॉइंट। ठीक है, तो अब VD अपॉन ID, व्हाट आर द वैल्यू आई एम गेटिंग, दैट इज द DC रेजिस्टेंस। और जो DC रेजिस्टेंस होती है उसकी क्या बात है, तब लिखते कैसे हैं, इट इज रिटन विद कैपिटल R with capital D as subscript. So capital R, capital D with subscript is a DC resistance of the diode. And how to compute that? It is computed at a particular point. यहाँ पर निकालोगे different आएगी, यहाँ निकालोगे different आएगी, यहाँ निकालोगे different आएगी. So if we compute, suppose at this point P1 and let's say at point P2, तो मुझे बताओ कि P1 पे resistance ज्यादा आएगी या P2 ज्यादा आएगी, देख के बताओ। RD is VD upon ID, है ना। तो एट पॉइंट P1 मान लो निकाली आपने और एट पॉइंट P2 निकाली, किस केस में आपको ज्यादा मिलेगी RD? सर P2 P2 में। रीजन भी P1 P1 में से P1 में मिलेगी ज्यादा, P1 P1 में से P1 मिलेगी श्योर। Yes, sir. P2 वाले कितना रहेगी? सी जो आपका पॉइंट P1 है, इस पॉइंट P1 में क्या हो रहा है आप देखो ध्यान से कि VD कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला होगा, नीचे वाला हो गया, और ID ये हो गया, है ना। अगर मैं पॉइंट P2 की बात करता हूं तो ये आपका ID हो गया और ये आपका VD हो गया। सो इट मींस फॉर पॉइंट P1 द अमाउंट ऑफ डायोड करंट इज लेसर एंड एट पॉइंट P2 द अमाउंट ऑफ ID और डायोड करंट इज हायर। अब ID कहाँ आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस में? डिनोमिनेटर के अंदर, है ना। तो अगर डिनोमिनेटर आपका लेस है, वो कब है? एट पॉइंट P1, तो RD क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा। सिमिलरली एट पॉइंट P2 माय ID इज हायर, तो RD क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो इट मींस इफ आई टॉक अबाउट द DC resistance of the PN diode, then the amount of DC resistance lesser than the knee voltage. देखो ना, ये पॉइंट P1 है, ये हमने knee voltage से पहले लिया है, ऑलमोस्ट या knee voltage के बराबर लिया है ना। तो closer to knee voltage my amount of DC resistance is higher, and as and when conduction started, तो क्या होगा? The amount of DC resistance reduces. Clear? DC resistance. yes sir yes sir Now next क्या आ गया आपका? AC resistance. अच्छा, DC resistance की एक चीज और भी थी, इसको हम बोलते हैं static resistance. क्या मतलब है इसका? फिक्स्ड, कि अगर आपने एक क्यू पॉइंट फिक्स कर दिया तो वो डायोड आपको उतनी ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उससे ज्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब भी आपने डायोड को यूज करना है तो आपने जब कैरेक्टरिस्टिक बनाए, उस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आपने एक ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करना है। उस ऑपरेटिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी आपका VD ID होगा उससे आपका RD निकलेगा, और वो RD आपका फिक्स्ड है, इट इज नॉट गोइंग टू वेरी। If you change the operating point to upside or downside, then definitely it's going to change. But you need to maintain the fixed value of operating point. तो operating point का मतलब ही क्या है कि मैं इतनी वैल्यू पे वोल्टेज लगाऊंगा तो इतना मुझे करंट मिलेगा। तो ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपको डायोड को ऑपरेट करवा रहा हूँ। So the amount of DC resistance offered by the diode is always the fixed value. Right? Now, if I talk about the AC resistance का मतलब क्या है? डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक का मतलब क्या? जो वेरिंग है। तो अब क्या करना है इस केस में? अब मान लो मैंने इस पॉइंट पे, ये मैंने क्यू पॉइंट सपोज करो, लेट्स से दिस इज माय क्यू पॉइंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस क्यू पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करी। नाउ हियर आई नीड टू कंप्यूट चेंज इन VD डिवाइड विद चेंज इन ID कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट। तो हमने जब यहाँ पर लिया तो जितना ऊपर लिया उतना नीचे लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमने मान लो निकाल लिया ID2, ये आ गया आपका ID1 कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट। इस साइड पे आपका मिल गया ये VD1, ये मिल गया मान लो आपका VD2। ये मैंने कहां से लिया? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है। तो अब जब मुझे निकालना है RD, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल RD, तो स्मॉल r विद सबस्क्रिप्ट स्मॉल d डिनोट्स द AC रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस, दैट इज VD2 माइनस VD1 डिवाइडेड विद ID2 माइनस ID1. So what is the change in diode voltage to the change in diode current is referred to as my dynamic or AC resistance. Right.
Now let's try to focus on again on 2 points. Let's take P1 and let's take P2. अब P1 पॉइंट के ऊपर बताओ मुझे व्हाट विल द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर डी। अब यहाँ पर क्या देखो, स्मॉल आर डी निकालना डेल्टा वी डी अपॉन डेल्टा आई डी, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, है ना। फिर ये 2 पॉइंट्स लोगे आई डी के लिए, 2 पॉइंट लोगे वी डी के लिए। फिर इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर लोगे टेंजेंट यहाँ पर आई डी और यहाँ पर वी डी। तो बताओ कौन सा लो आएगा कौन सा हाई आएगा। पॉइंट P1 पे क्या मिलेगा, लो मिलेगा हाई मिलेगा, हाई हाई। और पॉइंट P2 पे लो, पॉइंट P2 में लो। P2 पे लो। ऑल एग्री विद दिस? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट है बताओ कि कैसे लो है हाई है, तो मुझे बताओ। पॉइंट P2 पे हमें मिल रही है डायनेमिक रेजिस्टेंस लो और पॉइंट P1 में मिल रही है हमें हाई। क्लियर? अब जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, एवरेज रेजिस्टेंस। ये अब आपके डायोड ने कनेक्शन स्टार्ट तो कर दी, हमने डीसी रेजिस्टेंस की बात कर ली, हमने एसी रेजिस्टेंस की बात करी, लेकिन एवरेज रेजिस्टेंस क्या है कि मान लो कि मैं पॉइंट चेंज करता हूँ, मेरी वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज मान लो 0.1 से लेके 2 वोल्ट तक वेरी कर रही है, तो ऑन एन एवरेज मुझे कितने रेजिस्टेंस ऑफर करेगा डायोड, है ना। तो वो कैसे निकालते हैं, उसका तरीका ये है कि जो 2 वोल्टेज के बीच में निकाल रहे हो आप, जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट P1 है, यहाँ पॉइंट P2 है। अब मुझे पता है P1 पे डिफरेंट डीसी रेजिस्टेंस है, P2 पे डिफरेंट डीसी रेजिस्टेंस है, P1 पे डिफरेंट डायनेमिक रेजिस्टेंस है, P2 पे डिफरेंट डायनेमिक रेजिस्टेंस है, बट एवरेज कैसे निकालनी है। तो उसका तरीका क्या है कि जो 2 पॉइंट्स आपने ग्राफ पे पकड़े, P1 है यहाँ पर P2 है, तो P1 और P2 के ऊपर वोल्टेज निकालो, व्हाट इज द वोल्टेज एट P1 and voltage at P2. Similarly, current at P1 and current at P2. So VP1 minus VP2 divided with IP1 minus IP2 is the value of average resistance. तो यहाँ पर एक चीज देखो क्या लिखा हुआ है, आपको दिखने में दोनों फॉर्मूला सेम लग रहे स्मॉल आर डी वाला भी और आर एवरेज वाला भी, लेकिन फर्क क्या है इसमें, इन आर एवरेज वी आर सेइंग अंडर द कंडीशन दैट द पॉइंट टू पॉइंट, जबकि इस केस में कुछ कंडीशन नहीं थी, आपने कहीं भी पॉइंट ले लो, उसको टेंजेंट ड्रॉ करो और वहां पे उसको निकालो डेल्टा वी डी अपॉन डेल्टा आई डी। लेकिन जो एवरेज रेजिस्टेंस निकाल रहे हो वो आपने ये बताना है कि जो आपका कर्व है, जो आपका स्टार्ट हुआ, किस 2 पॉइंट्स के बीच में आपने एवरेज रेजिस्टेंस निकाले। इट मींस जो आपका ये पॉइंट P1 लिया, एक पॉइंट P2 लिया, उन दोनों के पॉइंट्स पे क्या वोल्टेज डिफरेंस था उन दोनों का, और कॉरस्पॉन्डिंग उन दोनों के क्या करंट डिफरेंस था, दैट इज गोइंग टू बी माय एवरेज रेजिस्टेंस। उसको लिखते कैसे हैं, कैपिटल आर विद स्मॉल में एवीजी, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज रेजिस्टेंस हो गया। और जनरली जब हम डायोड को लिखते हैं कितनी डायोड की रेजिस्टेंस, तो वो एवरेज रेजिस्टेंस होती है। अब अगर आपको कभी देखना हो ना कि कैसे लिखते हैं, तो यू कैन टाइप ऑन द गूगल कि पीएन डायोड डाटा शीट। ये मैं आपको वैसे एडवांस में बता दूं बात कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कोई कंपोनेंट हो ना, कोई मर्जी कंपोनेंट, चाहे डायोड हो, ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, आईसीज पढ़ोगे, या आपने कभी अपने मोबाइल फोन में आईसी देखा हो, लैपटॉप में आईसी देखा हो, है ना, तो आपको डिटेल नहीं पता उसकी क्या है, क्या काम करता है आईसी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या करो, उसका कुछ नंबर होता है ऊपर, तो वो नंबर गूगल पर टाइप करो एंड राइट डाटा शीट। अब ऐसे पीएन डायोड है, अब उसका नंबर आपको पता नहीं है कोई भी, तो आप पहले पीएन डायोड डाल दो खाली गूगल पे, तो आपको लिस्ट आ जाएगी बहुत सारी। या आप लैब में मान लो कोई डायोड यूज करो IN4001, तो आपको नहीं पता IN4001 क्या करता है, तो आप उसकी नंबर डालो गूगल पे एंड राइट डाटा शीट फॉर दैट। तो क्या करेगा, वो एक पीडीएफ खोलेगा आपके लिए। अब वो पीडीएफ कहाँ से आएगी, पीडीएफ जिस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, उसने उसकी पूरा प्रोफाइल दिया है। प्रोफाइल इन द सेंस कि उसकी एवरेज रेजिस्टेंस क्या है, उसकी डीसी रेजिस्टेंस क्या है, उसकी एसी रेजिस्टेंस क्या है, उसकी करंट रेटिंग क्या है, उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, उसकी टेम्परेचर रेटिंग क्या है, उसका ड्रॉप कितना है, राइट, उसका आईएस कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसका आईडी कैसे आ रहा है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। सो ऑल दैट इज गिवन इन द डाटा शीट। तो इट्स लाइक अ रिज्यूमे, जैसे आपका रिज्यूम होता है वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसका जो रिज्यूम को बोलते हैं डाटा शीट। तो डाटा शीट कंटेन्स ऑल द एंट्रीज कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो कभी भी कुछ समझ ना आए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आप उस आईसी का नंबर को डालो या आप उसके कंपोनेंट का नाम डालो और राइट डाटा शीट, तो आपको बताएगा कि कौन सा डाटा शीट चाहिए आपको। तो उसका आप नंबर अगर डालोगे IN4001 के चाहिए डाटा शीट, तो वो उसकी डाटा शीट आपको पीडीएफ देगा, उसको स्टडी करो। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर भी होता है कि जैसे आप आईसी यूज करोगे, मान लो उस आईसी में मान लो 8 पिन है, अब आपको क्या पता कौन से में क्या लगा हुआ, इनपुट का है आउटपुट का है ना। सो
दैट डिटेल इज देयर इनसाइड द डाटा शीट। जो पढ़ेंगे डिटेल आपको मैं फिर दिखाऊंगा उसमें डाटा शीट कि कैसी होती है डाटा शीट एक्चुअल में और उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो अभी फॉर द टाइमिंग आप ये लेके चलो कि एक डीसी रेजिस्टेंस है, एक एसी रेजिस्टेंस है, एक एवरेज रेजिस्टेंस है। जनरली हम एवरेज रेजिस्टेंस की बात करते हैं जब भी हम डायोड की वर्किंग करते हैं। वी आर नॉट टॉक अबाउट द डीसी एंड डीसी रेजिस्टेंस, वी से कि एवरेज रेजिस्टेंस क्या ऑफर कर रहा है डायोड में, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग नहीं होता, चेंज होती कभी 0.1 किया, कभी 1 किया, कभी 2 वोल्ट्स किया, कितने वोल्ट्स। तो वी टॉक अबाउट द एवरेज रेजिस्टेंस। इज दिस कांसेप्ट क्लियर? एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क। नो सर। No. तो सर ओके, सो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, अब जब हम डायोड को यूज करते हैं तो हमें डायोड को किसी तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। तो इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टडी द डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स और डायोड इक्विवेलेंट मॉडल्स। राइट, एक ही बात है, सर्किट बोलो या मॉडल बोलो आप। अब तो डायोड इक्विवेलेंट मॉडल का मतलब क्या है कि अगर आपके इस पोस्टर में एक डायोड लगा हुआ है तो इस डायोड को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, ये मेरा प्रैक्टिकल डायोड है मान लो, तो उसके और में 3 मॉडल होते हैं। पहला मॉडल कौन सा होता है? पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट मॉडल और सर्किट। इसमें क्या है कि जो आपका ये डायोड है, आइडियल प्रैक्टिकल डायोड, उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? विद 3 थिंग्स। पहला चीज क्या होगी, सेम डायोड बना देंगे लेकिन लिख देंगे उसको क्या है कि आइडियल डायोड है। देन we will write 0.7, it is of silicon। अगर जर्मेनियम का हो तो यहाँ 0.3 लिख देंगे, है ना। और गैलियम आर्सेनाइड हो तो 1.2 लिख देंगे। so depending on which डायोड है, generally we take silicon, so we do write 0.7 volts, and then we're writing here R average। so this is my average resistance, हम पीछे बात करें average resistance, so that is of the order of 10 ohms। so these 3 components is equivalent to one practical diode। तो अगर आपको ऐसे बना के दिखाऊं, ये आपका 1 प्रैक्टिकल डायोड है। सो इसके इक्विवेलेंट क्या होगा आपके पास, इसको रिप्रेजेंट करना, तो वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, आइडियल डायोड, then 0.7 volt or knee voltage, and then average resistance। so these 2 things are, so this is a piecewise linear equivalent model। क्लियर है पॉइंट? तो जब भी आपका पीस वाइज लीनियर मॉडल रहेगा, इसका मतलब क्या, आपने डायोड को इससे रिप्लेस किया। मींस ये 0.7 का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम बता रहे हैं कि 0.7 इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द कंडक्शन स्टार्ट टू इन द पर्टिकुलर पीएन टाइम। और जो आपकी आर एवरेज है वो बहुत कम है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 ओम्स और फ्यू ओम्स के आसपास होती है, तो वो आपके सीरीज में होती है। तो ये इसमें 3 कंपोनेंट आ गई, आइडियल डायोड आ गया, बैटरी आ गई 0.7 की, और एक आपका आर एवरेज। नाउ इफ आई गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट मॉडल, जो आपके पास क्या, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट मॉडल और इक्विवेलेंट सर्किट फॉर सिलिकॉन इफ आई ड्रॉ, तो क्या करेंगे, इस मॉडल में हम कहते हैं कि जो आपकी एवरेज रेजिस्टेंस है वो तो बहुत स्मॉल सी है, तो उसको निगलेक्ट कर दो। सो अंडर सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट मॉडल व्हाट वी आर कंसीडरिंग इज दैट वी आर टेकिंग द आर एवरेज एज 0 ohms। तो जो आपका ग्राफ पहले ऐसे जा रहा था, अब उसको मैंने स्ट्रेट कर दिया, ठीक है, स्लोप कम कर, स्लोप कितनी होगी उसकी, अब बताइए इसकी स्लोप कितनी है, perpendicular to y-axis, sorry, parallel to y-axis, Infinite. infinite, got it? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि here we are taking r average as 0। so अगर r average 0 हुआ तो उसका मतलब क्या है, now if I want to replace this practical diode, तो इसका इक्विवेलेंट मॉडल क्या हो जाएगा, आइडियल डायोड with a 0.7। ये आपका प्रैक्टिकल डायोड है। तो ये आपका कौन सा मॉडल हो गया, इसको बोलते हैं हम सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट मॉडल। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि भी पीस वाइज लीनियर मॉडल में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ गए, सिंप्लीफाइड में 2 हो गए। अब जो तीसरा मॉडल है उसमें क्या है, सिर्फ आइडियल डायोड है, आइडियल सर्किट, आइडियल मॉडल। इसमें क्या है कि आर एवरेज भी 0 कर दो और नी वोल्टेज प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे? हाँ थोड़ा प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे? हाँ जी बोलो। थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है इसीलिए स्लो जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ड्रॉ करो, ये मिल भी जाएगा आपको, वो ऐसी बात नहीं।
कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमारे पास क्या है कि एक डायोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए हमने 3 मॉडल्स बताए, एक बताया पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट मॉडल, एक बताया सिंपलीफाइड इक्विवेलेंट मॉडल, एक बताया थर्ड वन आपका आइडियल मॉडल। आइडियल मॉडल का मतलब क्या है, सिंपली रिप्लेस बैटरी डायोड विद आइडियल डायोड, उसमें वी नी वोल्टेज छोड़ दो और आपकी आर रेजिस्टेंस छोड़ दो, दोनों छोड़ दिया, तो आइडियल डायोड ही बन गया वो आपका। चलिए आगे, क्लियर है ये? कोई डाउट किसी का बताओ, एनी डाउट फ्रॉम दिस स्लाइड? No, sir. तो ये क्या आपके पास देखो, ये वही कैरेक्टरिस्टिक बन गए जो हमारे आइडियल डायोड के थे। तो इट मींस आइडियल मॉडल हमारा यही है जिसमें हम सिंपल आइडियल डायोड यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास, देखो डायोड कैपेसिटेंस। अभी डायोड कैपेसिटेंस क्या है, वी आर सेइंग दैट कि जब आपका डिफरेंशिएशन फॉर्म होती है, आपका ये पी एम ये एन है, राइट, तो हम क्या कह रहे थे, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, ऐसे कर रहे थे ना हम, राइट। सो इट मींस दिस इज एक्टिंग एज लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, so it is also acting as a capacitor, so it means कुछ ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा। तो आपको पता है एक्सी क्या होती है, 1/ωc। अगर मैं डीसी सिग्नल दे रहा हूं, मान लो डीसी सिग्नल ऑफ लेट्स से 5 वोल्ट्स, तो एक्सी कितना होगा? बताइए। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लो। My question is that if I am applying a 5 volt DC signal to the diode, what is the amount of XC offered? Infinity. Infinity. Why? Nine. Sir, Angular omega frequency will be zero. 0. Yes, Omega. because omega is what 2 pi f, and for the DC signal f is 0. So it means that the capacitor acts as a open circuit or short circuit? Open circuit for the DC signal. Open circuit मतलब क्या? There is infinite impedance. Now, when we are giving a signal of let's say lower frequencies or higher frequencies, so the amount of capacitance reactance going to change. For the higher frequencies, the XC value is very small or close to 0, and for the lower frequencies, XC will be higher or close to infinite. So it means the amount of capacitive reactance for the case of open circuited, जिसको कहते हैं open circuit होगा, इसका मतलब क्या? It is acting as infinite impedance. So वो कब हो रहा है? जब आप क्या कर रहे हो? We are applying a very low frequency to the diode, and for the higher frequencies, we are saying it acts as a short circuit. It means it is offering the almost zero capacitive reactance. Is this thing clear? Any doubt, please ask. Yes, sir, clear. चले आगे। Now, in this slide, we are showing you the two different breakdown mechanism. कौन-कौन से हैं? पहला है इसके अंदर avalanche breakdown, then it is linear breakdown. अब दोनों में देखो क्या हो रहा है कि जब मैं रिवर्स वोल्टेज लगा रहा हूं, तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिस टाइम पे आपके पास क्या हो रहा है, the current increases very fast. With a slight increment in the reverse voltage, my current variation is very high, out of control, है ना? तो अब यहाँ लिखा हुआ है देखो लीनियर ब्रेकडाउन, और यहाँ पर लिखा हुआ है avalanche breakdown. अब दोनों में क्या फर्क क्या है कि जो लीनियर ब्रेकडाउन है, it occurs at the low voltages. ये क्यों होता है कि because there is a strong electric field near the junction. तो जो हमने पीछे जंक्शन बनाया था उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो क्यों होती है? If we are making a diode with a higher doping profile. तो अगर आपने जो पीएन डायोड हमने किया था ना पहले कि 1 एटम in 10⁻⁶ एटम्स डोपिंग की थी, अब ये जो डोपिंग है उसको इंक्रीज कर दो. So if you go for the higher doping, then
the amount of electric field which is generated between the junction, near the junction, is going to be very, very high, and it results in the Zener breakdown. तो आपका करंट जो सा होता है वो बहुत हाई करंट होता है. Now इसी को क्या बोलते हैं? Write this as impact ionization for the case of Zener region, Zener diode. So Zener breakdown, not Zener diode, Zener breakdown. Now, if we talk about the avalanche, so what is happening here is that the moment you keep on increasing, a particular voltage will come at which the breakdown happens, and this happens at a very high voltage, and this is due to the velocity of minority carriers and their kinetic energy. क्या मतलब है कि जब हमने कहा था कि रिवर्स करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, तो आपने जब बहुत हायर वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज लगा दी तो क्या होगा कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उनकी वेलोसिटी बहुत हाई है, उसके अंदर किनेटिक एनर्जी काफी होगी, तो दे आर गोइंग टू स्ट्राइक टुगेदर, सो देयर रिजल्ट्स इन द lot of carrier multiplication in the case of avalanche breakdown, and it happens to be have at the very high voltages, and under this we say that the doping profile of the semiconductor material is low. आपका जो doping profile है अगर वो low है, then we generally say as a avalanche breakdown which occur at a very high voltages, and for the high doping profile semiconductor material we do have a Zener breakdown which occurs at a very low voltage, reverse voltage, and that is due to the strong electric field near the junction. हाँ जी सर ये एवलांच ब्रेकडाउन में क्या वो जो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक्चुअली इंक्रीज कर जाता है, तो यस इसके कारण एक हाई वोल्टेज क्रिएट करता है. बिल्कुल. तो जो आपके वेलोसिटी जो उनकी होती है ना माइनॉरिटी कैरियर्स की, वो बहुत बढ़ जाती है, एंड दे रिजल्ट्स इन द कैरियर मल्टीप्लिकेशन. तो वो स्ट्राइक करते हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स उड़ते हैं, देयर आर सो मेनी जनरेशन ऑफ द फ्री कैरियर्स. तो आपका जो ये रिवर्स रीजन में जो हमने कहा ना डिप्रेशन रीजन बना होता है, तो वो डिप्रेशन रीजन के अंदर क्या होता है, मोबाइल कैरियर्स होते हैं. तो जब हमारे avalanche breakdown होता है तो होता क्या है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो इतने फास्ट स्ट्राइक करते हैं, दे ब्रेक अप द बॉन्ड एंड दे रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट. दैट इज द रिजल्ट दैट दिस IS जो आपका रिवर्स करंट है, इट इंक्रीजेस आफ्टर ब्रेकडाउन. तो विद द स्लाइट इंक्रीमेंटल चेंज इन द रिवर्स वोल्टेज वी विल गेट अ ह्यूज चेंज इन द IS. Is this thing clear? Any doubt from this slide, please ask. Yes sir, clear. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's stop here because अभी 3 minutes रह गए, so we'll start Zener diode in next class. यहाँ तक इसका डाउट तो बताओ मुझे. आज हमने क्या क्या किया है, जस्ट एक रिकैप कर लेते हैं. हमने आज स्टार्ट किया था आपका यहाँ से, है ना. तो हमने पहली स्लाइड में देखा कि रिवर्स करंट आपका डबल हो रहा है फॉर एवरी 10 डिग्री इन टेम्परेचर, है ना, वो देखा हमने. फिर हमने क्या देखा यहाँ पर आइडियल डायोड में रिवर्स रेजिस्टेंस क्या होती है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रैक्टिकल डायोड में रिवर्स और फॉरवर्ड क्या होती है. देन वी आर फोकस्ड ऑन द डिफरेंट different types of resistances offered by a diode. इसमें हमने देखा DC resistance, AC resistance, average resistance. Then we talk about the diode equivalent models. कि 3 टाइप के मॉडल्स होते हैं आपके पास, एक पीसवाइज लीनियर मॉडल हो गया, एक सिंपलीफाइड हो गया, एक आइडियल हो गया. Then we talk about the diode capacitance. की diode capacitance जो होती है वो आपकी अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो उस केस में आपके पास its value is very low, right? And for the case of low frequency its value is very high. And then we talk about the 2 types of breakdown mechanism, Zener breakdown and avalanche breakdown. ठीक है? So let's stop here and we will discuss from the next class the Zener diode. सर आप लिंक्स का क्या कह रहे थे, कहाँ पे LMS पे